3x आज sin 3x. Sin 3x is sin of 2x plus x. Sin 3x is sin of 2x plus x. तो यहां पे आइडेंटिटी यूज करेंगे sin of x plus y. सम है ना, sum of angles. It is sum of angles. Sin of x plus y. Sin of x plus y is sin x cos y plus cos x sin y. So sum of angles, it is sin x मतलब 2x cos y means x plus cos 2x and then sin y जो है इसकी जगह sin x. So it is sin x cos y plus cos x sin y. Clear? अब देखो यहां पे कितना है 2x और यहां भी 2x, इनको भी x में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब sin 2x की आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी और cos 2x की आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी. sin 2x की दो आइडेंटिटीज है, एक है twice sin x cos x और दूसरा है twice tan x divided by 1 plus tan square x. उसको इस्तेमाल नहीं करना है, पहली आइडेंटिटी को which is twice sin x cos x, ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करो. और कौन है cos 2x की चार आइडेंटिटीज है, मैं बताऊंगा वन बाय वन. cos 2x की चार आइडेंटिटीज है. पहला है cos square x minus sin square x, दूसरा है twice cos square x minus 1, उसमें cos square आता है. तीसरा है 1 minus twice sin square x, उसमें sin square आता है. और लास्ट है 1 minus tan square x divided by 1 plus tan square x. तो हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें sin आता है, तो cos 2x की ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे 1 minus twice sin square x. ठीक है बेटा, 1 minus twice sin square x. So sin 2x is twice sin x cos x. सामने अपना cos है यहां पे, प्लस cos 2x is 1 minus twice sin square x और यहां पे sin ऑलरेडी मौजूद है. It becomes twice sin x, cos into cos is cos square x plus sin minus sin x minus 2 times sin cube x. नहीं समझे, बस मल्टीप्लिकेशन किया, 1 को मल्टीप्लाई किया sin के साथ और 2 sin स्क्वायर को sin के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. अब हर जगह पे sin आ रहा है, यहां भी sin है, यहां भी sin है, यहां भी sin है, एक जगह पे cos स्क्वायर है, तो 10th की आइडेंटिटी यूज करेंगे. It's cos square x plus sin square x is 1, so cos square x is 1 minus sin square x. ठीक है बेटा, तो it is twice sin x. और आपको यहां पे डेरिवेशन की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, डेराइव हम करेंगे, आपको बस याद रखना. twice sin x cos square is what 1 minus twice sin square x plus sin x minus twice sin cube x. It's twice sin x minus twice sin cube x, मल्टीप्लाई किया इन दो को, it's twice sin cube x plus sin x minus twice sin cube x. अब जो लाइक टर्म्स है उनको कंबाइन करेंगे, तो लाइक ये दो है, twice sin x and sin x is how much 3 times sin x minus minus plus, तो एडिशन करेंगे 2 plus 2 4 sin cube x. तो ये है आइडेंटिटी sin 3x. So what is sin 3x? Sin 3x is 3 sin x minus 4 sin cube x. एक important identity. Okay? You have to remember only this. ये सारा कुछ आपने याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसको याद रखना. So sin 3x is 3 sin x minus 4 sin cube x. The next one is cos 3x. हम इसको लिखेंगे cos 2x plus x. तो cos की सम वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी cos of x plus y.
cos of x plus y is cos x cos y minus sin x sin y. ठीक, cos x cos y minus sin x sin y. So cos x plus y is cos x cos y minus sin x sin y. ठीक है, अब जहां पे x है वहां पे 2x, जहां पे y है वहां पे x है हमारे पास. क्लियर हुआ? अब यहां भी वही दिक्कत 1 और 2 कौन कौन है? cos 2x और sin 2x. cos 2x की आइडेंटिटी इस बार जिसमें सिर्फ cos है वो ये twice cos square x minus 1. और जितने क्वेश्चंस आप करोगे ना ये आइडेंटिटीज आपको 1 by 1 आराम से याद रहेंगे. ठीक है, इनको रट्टा याद करने की जरूरत नहीं है. जितना आप क्वेश्चंस में इनको अप्लाई करोगे ये आराम से याद रह जाते हैं. और sin 2x की दो ही है तो इसमें तो पहले ही अप्लाई करनी होगी ये वाली, क्योंकि दूसरा है twice tan x, उसमें तो tan है वो यूज नहीं करनी. cos 2x is twice cos square x minus 1 into cos x. sin 2x is twice sin x cos x and sin x. Clear? It's twice cos cube x minus cos x minus twice cos x. sin into sin is sin square x. अब इसमें से किसको इरेज या मतलब रिमूव करेंगे यहाँ से? sin square है, इसको कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ cos. sin square is 1 minus cos square x. ठीक है, समझ आ रहा है? It's twice cos cube x minus cos x twice cos x. sin square is 1 minus cos square x. It's twice cos cube x minus cos x minus twice cos x plus twice cos cube x. 1 and 1 2, मतलब 2 plus 2 4 minus 3 cos x. ये किसकी आइडेंटिटी है? cos 3x. क्या है cos 3x? 4 cos cube x minus 3 cos x. और अभी जो पढ़ा था ना sin 3x वो उल्टा है, उसमें पहले 3 है 3 sin x, फिर है minus 4 sin cube x. फर्क देखो, दोनों सेम आइडेंटिटीज है. मतलब सेम है, दूसरे तरीके से बता रहा हूं. तो ये इन टर्म्स ऑफ cos और ये इन टर्म्स ऑफ sin, दोनों में कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है. बस फर्क इतना है, इसमें पहले 4 cos क्यूब है, इसमें बाद में 4 sin क्यूब. इसमें पहले 3 sin है, इसमें बाद में 3 cos है. मतलब 4 3 एंड दिस इज 3 4. ठीक, बाकी सिमिलरिटी आपको दिख रही है. ये इन टर्म्स ऑफ sin है, ये इन टर्म्स ऑफ cos है. sin की इन टर्म्स ऑफ sin में और cos की इन टर्म्स ऑफ cos में. और cos की जो आइडेंटिटी उसमें पहले को 4 है, 4 cos क्यूब minus 3 cos, और इसमें 3 sin minus 4 sin क्यूब. ठीक है, ऐसे इनको याद रखना. tan 3x is tan of 2x plus x. तो कौन सी आइडेंटिटी? सम है ना. It's tan of x plus y. जरा बोलो tan of x plus y. tan of x plus tan of y 1 minus tan of x tan of y. ठीक, it's tan of x plus y is tan of x plus tan of y. मतलब x divided by 1 minus their multiplication. ओके, अब इसमें भी 2x आ रहा है, तो tan 2x की भी आइडेंटिटी है. It's twice tan x 1 minus tan
square x. Clear? It's tan 2x is twice tan x 1 minus tan square x plus tan x divided by 1 minus tan 2x twice tan x 1 minus tan square x, ये ब्रैकेट में और ये बाहर tan x। अब इसको सिंपलीफाई करना है, तो सिंपलीफाई देखो कैसे करेंगे। इसके नीचे क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किस किस को मल्टीपल करेंगे, 2y tan x को 1 से और tan x को इन दो से, ठीक है, यहां से tan x माइनस, यस tan x 1 सा tan x माइनस tan क्यूब x, बहुत अच्छा, डिवाइडेड बाय फिर ये दो 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। फिलहाल इनको मल्टीपल करते हैं। अच्छा इसके नीचे 1 रखो, एक स्टेप में करते हैं। देखो इस टर्म का डिनोमिनेटर है 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसको किससे मल्टीपल करेंगे, 1 से, तो 1 into 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस tan स्क्वायर x। अगर समझ नहीं आया तो मुझे बता दें। फिर बीच में क्या है, 1 को इन दो से मल्टीपल करेंगे, मतलब 1 को मल्टीपल करेंगे ट्वाइस tan स्क्वायर के साथ, किसके साथ, समझ आया नहीं आया, नहीं समझ, ये समझ आया। यहां पे पहले मैंने इनको सिंपलीफाई करना था फिर जाके मल्टीप्लाई, लेकिन मैंने एक स्टेप में कर दिया। 1 को इनसे मल्टीपल करो और इस 1 को इन दो के साथ मल्टीपल करो, मतलब एक सिंपलीफाई भी हो गया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। सो ऐसे माइनस 1 into this twice tan square x divided by 1 minus, समझ आया। इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर सेम है, ठीक। आगे चलते हैं, व्हाट्स रिमेनिंग, twice tan plus tan is 3 times tan minus tan cube x divided by 1 minus tan square minus 2 tan square, so minus 3 tan square, it's 1 minus 3 tan square x, therefore tan 3x is 3 tan x minus tan cube x divided by 1 minus 3 tan square। ओके बेटा, अब हमारा टॉपिक क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं पहले, फिर कैसे पढ़ेंगे सोशल ग्रुप। देखो आपने 10th में पढ़ा है sin 90 minus a, वहां पे 90 डिग्री लिखते थे और a लिखते थे, आज लिखा sin पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक, किसके बराबर है, cos x, फिर जाके cos 90 माइनस एक्स sin of x, फिर tan, फिर इसी तरह cot sec cos, ठीक। पहले इनका मतलब समझते, ये है क्या, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास cos 60 है, cos 60 डिग्री है, मैं 10th की भी बात कर रहा हूं, पहले मैं इसका कंसेप्ट आपको दूंगा, फिर जाके ये आइडेंटिटीज कैसे याद रखनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आपके पास cos 60 है तो cos 60 होता है sin of 90 minus 60, नहीं समझे, है ना, cos A is sin 90 minus A, क्लियर, यहां ध्यान रखना अच्छे से। सो cos 60 is equal sin 90 minus 60 is sin 30। इसका मतलब ये है, इस आइडेंटिटी का मतलब ये है कि sin और cos के वैल्यूज जो है वो कभी कभी इक्वल भी होते हैं, ठीक, लेकिन इक्वल कहां होते हैं, एक अगर आप टेबल में चेक करोगे ना sin और cos का टेबल, इनका कंफ्यूजन कैसे, एक ही बॉक्स के अंदर ये इक्वल नहीं होते, तो अगर f साइज 1/2 f का 1/2 नो, ठीक है। हाँ ऐसा है कि साइन का अगर कोई वैल्यू है ना वो cos का भी वैल्यू हो सकता है कभी किसी एंगल में, एक जगह पे इक्वल है एक ही बॉक्स के अंदर 1/√2 और कब 45 डिग्री पे, है कि नहीं है, 45 डिग्री पे साइन और cos के वैल्यूज इक्वल है,
और बाकी जितने एंगल्स हैं उन पे साइन और कॉस के वैल्यूज क्रॉस होते हैं। कब होते हैं क्रॉस? आपने देखा cos 60 का वैल्यू कितना है 1/2 और sin 30 का वैल्यू कितना है 1/2। तभी जाके cos 60 किसके बराबर है? sin 30 के बराबर। cos 60 किसके बराबर है? sin 60 के बराबर नहीं है, किसके बराबर है? sin 30 के बराबर। और आपको पता है इनको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। 60 और 30 का सम कितना होता है 90। तो मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर आपके पास sin 21 डिग्री का वैल्यू आपको अगर कभी पता चला, किसका वैल्यू? sin 21 डिग्री का वैल्यू अगर आपको कभी पता चला तो आप समझ लेना कि आपको cos का होता है इससे 69। कभी अगर आपको sin 21 डिग्री का वैल्यू पता चला ना, उस दिन आप समझ लेना कि आपको cos 69 डिग्री का भी वैल्यू पता है, क्योंकि इन दो का सम अगर 90 है तो इनके वैल्यूज इक्वल होते हैं। ठीक, समझ आवा? बोझ तो प्यार अगर आपने sin 135 डिग्री निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है? sin 135 डिग्री। देखो आपने स्टैंडर्ड में 30 डिग्री पढ़ा है, 45 पढ़ा है, 60 पढ़ा, और वो क्वाड्रेंट एंगल 0, 90, 180, 270 एंड 360, बस वही स्टैंडर्ड एंगल्स आपने पढ़े। अगर ये वैल्यू आपको निकालना है, अगर ये एंगल स्टैंडर्ड एंगल्स में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट कैसे होगा? देखो साइन ऑफ 90 प्लस 45 हुआ कि नहीं हुआ? साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 45, तो आप इसका वैल्यू ढूंढ सकते हो। ठीक है बेटा, साइन ऑफ 135 डिग्री इज इक्वल साइन ऑफ 90 प्लस 45। लेकिन मसला है, जैसे साइन ऑफ 90 माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर है, तो साइन ऑफ 90 प्लस एक्स किसके बराबर है? आपने 10th में क्या पढ़ा था? साइन 90 माइनस ए। आज आपने क्या पढ़ना है? क्योंकि वहां पे सिर्फ लिमिटेड था, 10th का जो टेबल था ना वो कहां से कहां तक था? 0 से लेकर 90 तक। तो आपने वहां पे 91 डिग्री नहीं पढ़ना था, आपने वहां पे 100 डिग्री नहीं पढ़ना था, आपने वहां पे 135 डिग्री नहीं पढ़ना था। लेकिन अब हमने आपको पहले दिन बोला था कि आप 0 से लेकर 360 तक नहीं, इससे आगे भी और जाओगे। और हम आगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में ये भी बताएंगे कि वैल्यू आगे जाके आप कहां कहां वैल्यू, किसका वैल्यू क्या होता है। इनफाइनाइट एंगल्स की हम बात करेंगे तब नेक्स्ट टॉपिक। ठीक, देखो साइन 90 प्लस एक्स, अब आप लिमिटेड नहीं हो 90 तक, अब आप आगे भी जाओगे, तो आपने किसका वैल्यू निकालना है? 135। इसको स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट किया, कैसे किया? इसका दूसरा ऑप्शन भी है कन्वर्ट करने का। साइन 135 कैन बी कन्वर्ट एज साइन 90 प्लस 45। हम इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं पूछ दूंगा साइन 180 माइनस करो 45 होगी सर? हाँ यस। तो साइन 135 के दो तरीके बन गए, आइदर साइन 90 प्लस 45, आइदर साइन 180 माइनस 45। ये बन गया साइन सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। बना कि नहीं बना? ठीक है। अगर आपके पास ऐसा है cos ऑफ 120 डिग्री, तो कैसे कैसे इसको बना सकते हैं जरा बताओ? cos ऑफ 90 प्लस 60 एंड cos ऑफ 180 माइनस 60। या 90 प्लस 30, 90 plus 30 is 120 and this is 180 minus 60 is 120। तो स्टैंडर्ड एंगल्स को, इन एंगल्स को स्टैंडर्ड एंगल्स में कन्वर्ट करना। पहले देखते हैं 135 डिग्री है कहां पे? कहां पे 135 डिग्री? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है कि नहीं? तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल बनता है वो किन की मदद से बनता है? या तो 90 को हमने कुछ
ऐड किया है या तो 180 को कुछ, दो ही ऑप्शन है ना, नहीं समझ रहे बात, क्या क्या किया है, या तो 190 को कुछ ऐड किया या 180 को कुछ सब्ट्रैक्ट किया। अच्छा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है कोई, तो वहां पे क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं क्वाड्रेंट में, या तो 180 को कुछ ऐड हुआ है या तो 270 को कुछ सब्ट्रैक्ट। तो मतलब हमारे पास एक एंगल ऐसा भी हो सकता है tan of 270 डिग्री माइनस x। आपने सिर्फ पढ़ा था sin 90 माइनस x, cos 90 माइनस x, मतलब 90 माइनस x आपने पढ़ा था, या 90 माइनस a। अब देखो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, सिर्फ 90 माइनस a नहीं, क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हो, हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं रहेंगे, हम सेकंड में भी पहुंचे, थर्ड में भी और फोर्थ में। तो फर्स्ट के लिए ऑप्शन 90 माइनस ए। अब सेकंड की बात करेंगे, सेकंड में क्या क्या ऑप्शन है, 90 प्लस ए से एंगल जो बनता है वो सेकंड क्वाड्रेंट का होता है, या 180 माइनस ए से, इसी में रह जाता है। थर्ड के लिए क्या क्या ऑप्शन है, 180 प्लस एंड 270 माइनस। फोर्थ के लिए क्या ऑप्शन है, 270 प्लस एंड 360 माइनस। और फर्स्ट के लिए क्या ऑप्शन है, 0 प्लस नहीं 360 प्लस, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 360 के बाद वैल्यू रिपीट होता है। फर्स्ट के लिए क्या ऑप्शन है, 360। अब ये 0 नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि 0 प्लस 60 तो 60 ही हुआ, हम बोलेंगे 360 प्लस 60, ठीक है। तो 360 प्लस 60 मतलब 360 प्लस x और 90 माइनस x। एक हमने पढ़ा था 90 माइनस x बस। तो इतने सारी चीजें आपको याद रखनी। आपने रखा था याद 6 आइडेंटिटीज, कौन कौन, sin 90 माइनस a, cos 90 माइनस a, tan 90 माइनस a, cot 90 माइनस a, sec 90 माइनस a एंड cosec 90 माइनस a। अब आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो 90 माइनस a याद रखना है और 90 प्लस a याद, फिर आपको 180 माइनस याद रखना है और 180 प्लस a याद रखना है, फिर आपको 270 माइनस a याद रखना है और 270 प्लस याद रखना है, फिर आपको 360 माइनस याद रखना है और 360 प्लस याद रखना है। तो ये 6 1 6 6 1 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 6 are 48 आइडेंटिटीज। अब आपको याद कितने, 48 आइडेंटिटीज आपको याद रखना। मेरी बात को समझ रहे हैं। अब देखो इन आइडेंटिटीज को कैसे हम सॉल्व करेंगे और इनको कैसे याद रखना है एकदम से। फिलहाल देखो सॉल्व करें, 90 माइनस ए तो आपको पता ही है। अब कुछ इनमें से हम सॉल्व करेंगे। तो यो कौन दे रहा हूं, यहां से फॉर एग्जाम्पल you have 135 135 can be written as 90 plus 45। ये डिग्रीज में मैंने लिखा, इसको मैं रेडियन में लिखूंगा। तो रेडियन में कैसे लिखेंगे, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस दिस पाई बाई 4, ठीक है, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। अच्छा असल में ये 45 हो या 46 हो या 47 हो, हम फोकस किस पे कर रहे हैं, 90 पे। तो मैं यहां पे लिखूंगा साइन ऑफ 90 प्लस, इसके बदले में x लिखूंगा। नहीं समझे, मुझे असल में 135 डिग्री का वैल्यू नहीं निकालना है, मुझे असल में आपको समझाना है कि 90 प्लस x किसके बराबर है, साइन 90 प्लस x। मेरी बात को समझ रहे हैं। हाँ उसके बाद आप 135 का वैल्यू निकालो, वो छोटा मसला है। फिलहाल मेरा फोकस मैंने इस यहां से यहां तक लेकर इसलिए आ गया कि आपको ये चीज समझ में आ गई, मुझे इस आइडेंटिटी को सिंपलीफाई करना है। इसके लिए इसका आंसर निकालना है कि अगर sin 90 माइनस a cos x के बराबर है तो sin 90 प्लस x किसके बराबर है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। क्यों sin 135 मैंने इसको कन्वर्ट किया 90 प्लस 45। अब 90 पाई बाई 2 है, 45 एक एक्यूट एंगल है, ये हमेशा 45 नहीं होगा, ये 60 होगा, 30 होगा। तो मतलब ये x मैंने लिखा है कि x इज सम एक्यूट एंगल और x इज सम एक्यूट एंगल। इतना समझ आया। अब देखो आगे क्या करना, sin x प्लस y सम ऑफ एंगल्स, याद है सम ऑफ एंगल्स, sum of angles when it is sin, sum of angles, sin x plus y, sin x plus y is sin x cos y plus cos x sin y।
अब इनमें से साइन 90 1 है और ये cos x और cos 90 0 है और ये sin x है। ये खत्म, बचा क्या? cos x। कौन है cos x के बराबर? sin पाई बाई 2 माइनस एक्स भी cos x है और sin पाई बाई 2 प्लस एक्स भी cos x। मतलब अब देखो क्या था, मसला क्या था? sin 135 है, sin 135, sin 135 का वैल्यू निकालने के लिए आप इसको स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करो। अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, 45 है सर। हाँ, अब मुझे बताओ आइडेंटिटी, sin 90 प्लस 45 किसके बराबर है? cos 45। तो आपने इसके लिए परेशान नहीं होना है, बस इसके बदले cos 45 लिखो और cos 45 का वैल्यू कितना आसान है ना? समझ आ रहा नहीं है? देखो अब क्या होगा, और अगर ये cos होगा, समझ आ रहा है? इन सबको याद रखना एक एक करके, बात हम बोझ नहीं। cos of 135, cos of 135, cos of 135 sin cos 90 plus 45, यही है ना? 90 को मैं कैसे लिखूं? पाई बाई 2 और 45 इज सम एक्यूट एंगल x है ना, पाई बाई 4 दैट्स सम एक्यूट एंगल x। मैं आइडेंटिटी बना रहा हूं, मैं इसका वैल्यू नहीं निकाल रहा हूं, वो तो निकालना आसान है, अभी निकाला ना? यस सर, अभी निकाल के दे दिया 1 सेकंड में। लेकिन जब मुझे आइडेंटिटी याद थी तब, तो फिलहाल हम बनाने जा रहे हैं आइडेंटिटी को। cos सम ऑफ एंगल्स, याद है cos क्या? सम ऑफ एंगल्स, इट्स cos x और cos y माइनस sin x sin y। ये 0 तो मतलब सारा 0, ठीक है? cos 90 किसके बराबर है? 0, तो ये 0, sin 90 इज 1, इट्स 1 into sin x, कुल मिला के क्या बचा? माइनस sin x। तो cos किसका आइडेंटिटी? cos 90 प्लस x किसके बराबर है? माइनस sin x। देखो अब उल्टा हो गया, sin 90 प्लस x cos x के बराबर है, प्लस तो cos 90 प्लस x माइनस sin x। अब इसको कितना याद रखना मुश्किल है? कौन माइनस है कौन प्लस है? मुश्किल है कि आसान? कैसे याद रखें? cos में साइड में बाहर आता है नहीं, ये वो कंसेप्ट नहीं। देखो sin 90 माइनस अगर है, sin 90 माइनस इज cos a, sin 90 minus is cos 90 minus is sin a, tan 90 minus is cot a, cot 90 minus is tan a, sec 90 minus is cosec a, cosec 90 minus is sec a। कहीं पे कोई नेगेटिव है? कोई नेगेटिव नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है, वहां पे sin कन्वर्ट होता है cos में और cos कन्वर्ट होता है sin में, tan to cot, cot to tan, sec to cosec, cosec to sec। ठीक है? किस किस की रिलेशन है? sin और cos की, tan और cot की और sec और cosec की। वहां पे इतना ही याद रखना है। इस बार एक तो याद रखना है कि sin कन्वर्ट होता है cos में, cos कन्वर्ट होता है sin में, लेकिन एक जगह पे प्लस है दूसरी जगह पे माइनस है। अभी अगर tan का देखेंगे तो कुछ और आ जाएगा, समझ आ रहा नहीं यार? tan में कुछ और आ जाएगा। अच्छा, और एक चीज देखो, इसी चीज को हम फिर से सॉल्व करेंगे, इसी चीज। इसके लिए मैंने एक आइडेंटिटी बनाई थी 90 प्लस, इसी को मैं दूसरे तरीके से सिंपलीफाई करूंगा, ध्यान रखना। सुनो बेटा, sin 135 is sin 180 minus 45, यही है ना? यस सर। ये माइनस या प्लस हमेशा एक्यूट एंगल होगा, इतना याद रखना, ये एक्यूट से ज्यादा नहीं। अच्छा, इस बार क्या है? sin पाई माइनस एक्स। तो हम बेसिकली आइडेंटिटी बनाने जा रहे हैं, इसका वैल्यू तो मैंने कब का निकाला? 1/√2 है, जब ये आइडेंटिटी इस्तेमाल की। इसी से मैंने ये आइडेंटिटी बनाई, इसी से मैं दूसरी आइडेंटिटी बनाऊंगा। देखो क्या होगा, साइन सम डिफरेंस ऑफ एंगल्स, साइन एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। तो क्या है? साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई।
ठीक, इट इज साइन पाई 0, तो ये कुल मिला के 0 माइनस कॉस पाई इज -1, माइनस इंटू -1 एंड साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। अब देखो साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स। और एक चीज ने हमें परेशान कर दिया, क्या? साइन पाई माइनस एक्स। पहले हमने 10th में देखा था कि साइन कन्वर्ट होता है किसमें? कॉस। और कॉस कन्वर्ट होता है साइन। अभी भी हमने देखा था, अभी हमने दूसरी चीज ने हमको परेशान किया, किस चीज ने? साइन कन्वर्ट होता है कॉस में और कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, लेकिन कभी प्लस आता है कभी माइनस। ये दूसरी परेशानी होगी। पहले हमें कोई परेशानी नहीं, इतना याद रखा था हमने 10th में, साइन कन्वर्ट होता है कॉस में और कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, एंड टेन कॉट वो आपको पता ही है, और सारे पॉजिटिव आते थे। फिर हमने देखा कि साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, मुझे लगा कि शायद 10th की तरह है, लेकिन जब मैंने देखा कॉस कन्वर्ट होता है साइन में लेकिन विद नेगेटिव, तो मैं परेशान हो गया। अब कब नेगेटिव है कब पॉजिटिव, ये एक परेशानी हो। दूसरी परेशानी, अब देखो साइन साइन में ही रह जाता है, कॉस में कन्वर्ट नहीं होता है। नहीं समझे? यस सर। जब आप परेशान हो जाओगे तभी इसका हल होगा। अगर तुम परेशान चुके फिर क्या दिल से मसले फिर इनको लिख के रखेंगे कहीं पे वाल पे, तो याद रखेंगे। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको समझ आ रहा है? यस सर। हम डिफरेंस कर रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं 10th में 11th में और इन आइडेंटिटीज में। साइन किस में रह गया? साइन में। ये तो कॉस में कन्वर्ट नहीं हुआ ना। अब यहां पे देखो इसी तरह कॉस का एक आइडेंटिटी बनाई मैंने, साइन कन्वर्ट होता है किसमें? सॉरी कॉस कन्वर्ट होता है साइन में। अब इसी को फिर से यूज करेंगे, इसी cos 35 को cos 135 को इस बार मैं लिखूंगा 180 माइनस 45, मतलब इट्स cos ऑफ पाई माइनस एक्स, है ना? एक्स से सब एक्यूट है, तो cos पाई माइनस एक्स इज cos डिफरेंस ऑफ एंगल्स, इट्स cos x cos y प्लस sin x sin y। ये बन जाएगा 0, क्यों? क्योंकि sin पाई 0 है, cos पाई -1 है तो ये माइनस cos x। फिर से हो गया मसला, फिर से मसला। इस बार देखो क्या हो रहा है, cos तो मान ही नहीं रहा है, cos ने ऊपर नेगेटिव हुआ और x साथ को cos कन्वर्ट किया इसमें, और दूसरी बार क्या हुआ, cos में ही रहेगा लेकिन नेगेटिव। अब आपका दिमाग ये सोच रहा है कि चलो जब ये नेगेटिव है cos शायद हमेशा नेगेटिव होगा। अब दूसरा देखो, इतना समझ आया? अभी मैंने 4 आइडेंटिटीज बनाई, अब फिर से आपको कंफ्यूज करूंगा। फिलहाल मैं इनको नोट करूंगा यहां पे 4, फिर देखते हैं फर्क और फिर इनको कंक्लूड करेंगे। साइन 90 प्लस एक्स पढ़ा तो cos x, और जब cos 90 प्लस एक्स पढ़ा तो माइनस साइन। और आपका दिमाग ये सोचने लगा कि cos नेगेटिव में ही कन्वर्ट होता है। फिर sin पाई माइनस एक्स, इट इज sin x, नहीं sin ही रहेगा, और cos पाई माइनस एक्स, ये तो माइनस cos। sin cos में कन्वर्ट हुआ और cos sin में कन्वर्ट हुआ। दूसरी बार ऐसा हुआ sin sin ही रहेगा और cos cos ही रहेगा, और cos दोनों बार क्या है? नेगेटिव। तो मुझे शायद ये लगने लगा कि cos हमेशा नेगेटिव ही होगा। अब कुछ और ट्राई करते हैं, हम ट्राई करेंगे sin ऑफ 210, sin ऑफ 210, sin ऑफ 210 इज 180 प्लस 30, 180 प्लस 30, है ना? यस सर। इट इज sin ऑफ पाई प्लस एक्स, बेसिकली पाई माइनस एक्स तो पढ़ा ना, अब पाई प्लस एक्स पढ़ने जा रहे हैं। देखो इन दो पे सीख जाओ तो टेन कॉट हो, तो अकॉर्डिंगली इनके इसी पे चलते रूल्स। sin पाई प्लस एक्स, अब जल्दी से बोलो सम ऑफ एंगल्स है, इट इज sin x cos y, है ना? फिर प्लस होता है cos x sin y, इसमें से ये 0 बन जाएगा, क्यों? पाई sin पाई 0, cos पाई -1 तो आंसर आएगा माइनस
अब तो और एक परेशानी होगी, जरा बोलो क्या परेशानी Sin होगी? pi minus x is 1 minus. साइन तो पॉजिटिव रह गया था ना, Yes sir. अब तो ये नेगेटिव आ रहा है, बने में ब्याह परेशान। शायद जो आपने सोचा था कि cos है तो नेगेटिव तिशन का सर साइन भी कभी नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। और साइन साइन भी रह सकता है, cos में भी कन्वर्ट हो सकता है। अभी क्या क्या सीखा हमने, साइन कन्वर्ट होता है cos में भी, और साइन साइन ही रह जाता है। cos कन्वर्ट होता है साइन में, और cos cos भी रह जाता है। फिर हमने देखा साइन कभी पॉजिटिव भी बनाएगा और साइन कभी नेगेटिव भी बनाएगा। अभी देखा, अभी जस्ट cos भी पॉजिटिव भी होगा, cos कभी Negative. नेगेटिव होगा। अब चलते हैं कंक्लूजन पे, किस पे? Conclusion. अब याद रखोगे ऐसे जुबानी 48 कब नेगेटिव है कब पॉजिटिव। अब देखो इनको याद कैसे रखेंगे, हाउ टू रिमेंबर। बॉयज बाबा Yes sir. सुनो बेटा, शरण कंक्लूड करो। ये है एड, ऑल पॉजिटिव, साइन and its reciprocal, cosec are positive, tan and its reciprocal cot are positive, cos and its reciprocal sec are positive। ठीक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहां पे सारे पॉजिटिव है, यहां पे ये दो पॉजिटिव है, यहां पे ये दो पॉजिटिव। गोवा इनसे तुम तो क्लियर कर, नेगेटिव का रही था, पॉजिटिव कब आएगा। अब दूसरा एक कंफ्यूजन था आपको, साइन कभी cos में कन्वर्ट होता है, कभी साइन साइन ही रह जाता है। अब देखो कब, जब भी एंगल इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में, मतलब साइन पाई बाई 2, cos पाई बाई 2, tan पाई बाई 2, या 3 पाई बाई 2, या 5 पाई बाई 2, या 7 पाई बाई 2, ठीक है। जब भी एंगल, मतलब जब हम साइन को कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड एंगल्स में, और इसके साथ जो पहला एंगल होगा ना वो पाई बाई 2 फॉर्म का होगा, चाहे वो 1 पाई बाई 2 हो, चाहे वो 3 पाई बाई 2 हो, मतलब किस फॉर्म का होगा, ये एक हो गया। दूसरे में क्या आया था अभी, पाई आया था ना, हमने स्टैंडर्ड एंगल 210 को कन्वर्ट किया था 180 प्लस 30, 180 तो पाई है ना, तो दूसरा फॉर्म है एन पाई। ये पहला रूल है, याद रखने। अगर इन रेशियोज के साथ जब हम इनके एंगल को ब्रेक करेंगे स्टैंडर्ड एंगल्स में, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास ये है, अभी मैंने बोला अगर हमारे पास है 135, इस 135 को अगर हम स्टैंडर्ड एंगल्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या क्या आएगा, आइदर 90 प्लस 45, तो मतलब यहां पे तो 90 आ गया पाई बाई 2, और इट कैन बी कन्वर्टेड एज 180 माइनस 45, ये तो इस वाला है, इसमें n पाई में से। तो ये हमारे पास दो तरीके हैं। पहला, जब भी इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो रेशियो चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चेंज। कौन कौन चेंज? साइन चेंज होगा कॉस में एंड वाइस वर्सा। जब अंदर से 90 प्लस होगा या 90 माइनस होगा, 3 पाई बाई 2 प्लस होगा या 3 पाई बाई 2 माइनस होगा। और जब इस फॉर्म में होगा तो साइन साइन ही रह जाएगा। रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड, रेशियो रिमेन्स, ये पहला रूल है। तो यहां पे टेन किसमें चेंज होगा? कॉट में, और सेक कोसेक वहां पे अनचेंज्ड है। ठीक, अब देखो मसला क्या है। अब अगर हमारे पास है साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, पहला पॉइंट ध्यान रखना, पाई बाई 2 है, और अगर आपको याद होगा ना मैंने इसका आंसर क्या निकाला था, cos x। इसका आंसर क्या निकाला था? cos x। अभी जब मैंने सिंपलीफाई किया तो इसका आंसर मैंने निकाला था cos x। अब यहां ध्यान रखो आप अच्छे से, अगर 90 है तो साइन चेंज हो जाता है, किसमें? ये पहला रूल है। लिखना क्या है? सीधे cos x। क्या लिखना है? साइन 90 प्लस x इज cos x। अच्छा, 90 प्लस x ये कौन सा एंगल है, कहां पे फॉल हो रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। साइन का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर इसका वैल्यू पॉजिटिव है, तो मतलब ये पॉजिटिव रह जाएगा।
थोड़ा थोड़ा लोग समझ क्या लोग उसका बुझना। अगर cos 90 प्लस x, पहला रूल है कि cos 90 है तो cos किसमें चेंज हो जाएगा, तो cos 90 प्लस x is sin x। अब हम किस क्वाड्रेंट में फॉलो हो रहे हैं, सेकंड के अंदर, तो सेकंड के अंदर cos का वैल्यू इसका नहीं देखना है, जिसको आप कन्वर्ट करो उसी को cos का वैल्यू देखना है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, समझ आ रहा है, इसीलिए ये वहां पे नेगेटिव था। नहीं आपको नहीं समझ। वन मोर, इफ इट इज tan of 3 pi by 2 minus x, बोलो क्या करना है, 3 pi by 2 minus x, 3 pi by 2 है तो tan कन्वर्ट होगा cot में, 3 pi by 2 मतलब दिस फॉर्म, tan कन्वर्टेड टू cot। अब क्वाड्रेंट ढूंढो बस, क्वाड्रेंट 3 pi by 2 is here, Yes sir. minus third quadrant, देखो 270 है, यहां से आ रहे हो 270 है, तो अगर ऐड करोगे तो यहां जाएंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो वापस आएंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद सेकंड में नहीं आओगे, किस में आओगे, थर्ड में आओगे। plus इसका वैल्यू तो पॉजिटिव, tan का वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा। मशीन पास विन तो होता है। हां yes sir, अब जरा मुझे बोलो, cot of 3 pi by 2 plus x, बोलो cot किस में कन्वर्ट होगा, cot ही रहेगा कि tan में कन्वर्ट होगा, ये पहला पॉइंट। Yes, sir. cot किस में कन्वर्ट होगा, Tan में। नहीं समझ आ रहा नहीं आ रहा, Yes, ये पहला पॉइंट। अब डिसाइड करना है प्लस और माइनस, Sir, minus. 3 pi by 2 plus x, तो फोर्थ क्वाड्रेंट Yes, है, sir. where cot is negative। Negative. yes sir, अच्छा, sin of 3 pi by 2 plus x, Cos minus sin कन्वर्टेड टू cos, minus cot, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो sin का वैल्यू नेगेटिव है, बहुत आसान है, ठीक है। Yes, तो sir. इतनी सारी आइडेंटिटीज जो आपने 10th में 6 याद रखी थी, आज आपको इतनी सारी आइडेंटिटीज याद रखनी है, और आपको अब याद नहीं रखना है, बस ये कंसेप्ट याद रखना। ये कंसेप्ट आपके सामने है तो आप इनको आराम से याद रख सकते हैं। क्या क्या याद रखना है, Sir. जब भी आपको किसी एंगल का वैल्यू निकालना होगा, पहले उसको स्टैंडर्ड एंगल्स में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड एंगल में 90 होता है, मतलब 90s होते हैं और पाइज होते हैं। yes sir, अगर 90s में किया तो रेशियो चेंज हो जाएगा, अगर पाइज में किया तो रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड। अब चेक करना है किस क्वाड्रेंट में फॉल हो रहे हैं, जिस क्वाड्रेंट में फॉल हो रहे हैं उसकी साइन देखनी है, अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो negative. ओके। Yes sir. समझ आओ असल Yes, sir. पर, कोई परेशानी Yes, बस। sir. Yes sir.